Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, transportation and excretion in living organisms. Introduction. As we know, living organisms need food, water and oxygen to survive. Green plants prepare food by the process of photosynthesis. For this, they need carbon dioxide, water and sunlight from the environment. Water is absorbed by roots and transported to stems and then to leaves where photosynthesis takes place. How does water from roots reach the leaves? How is food carried or transported to all parts of the body and reaches each cell? Living organisms take in oxygen from the air and release carbon dioxide produced as a result of respiration in the cells. How does oxygen reach every cell in the body, and how does carbon dioxide get collected from every cell to be expelled out? How is urine carried out of the body? All this shows that living organisms must be capable of transporting nutrients, wastes and gases to and from the cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी को फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसके लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वाटर, सनलाइट, है ना. वाटर जो है वो रूट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर स्टेम तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, देन लीव तक जहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है. बट ये जो वाटर है ना, ये रूट से लीव्स तक पहुंचता कैसे है, और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के हर पार्ट तक, हर सेल तक जाता है आपका, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना. तो ये ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के हर सेल तक कैसे पहुंचती है, और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होता है हर सेल से और बाहर निकलता है, किस तरह से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर आता है. तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, इट इज़ केपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस टू एंड फ्रॉम द सेल्स. 8.1 Transportation in plants. Plants are not as active as animals, so their cells need not be supplied with materials very quickly. Moreover, due to the branched shape of a plant, all the cells of a plant get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from the air by diffusion. As such, the only substances which a plant needs through a transport system are water and minerals. Another job of the plant's transport system is to transport food prepared in the leaves to various parts of its body like stem, roots, etc. In the light of the above discussion, plants have two types of conducting tissues called xylem and phloem. Or we can say that plants have two transport systems. Number one, xylem vessels carry water and minerals from the root hairs to leaves where food is manufactured. Number two, phloem vessels carry the manufactured food in a soluble form from the leaves to the various parts of the plant including the roots. देखिए, प्लांट्स आपके एनिमल्स की तरह एक्टिव तो नहीं होते हैं, तो जो उनके सेल्स हैं उनको जो मटेरियल्स है बहुत क्विकली उनको ज़रूरत होती है. और क्योंकि प्लांट्स की ब्रांच्ड शेप होती है, तो जो सेल्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनको ऑक्सीजन मिल जाता है रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बाय डिफ्यूजन. तो जो सिर्फ जो सब्सटेंस एक प्लांट को ज़रूरत होती है वो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, वो भी किसके लिए, वाटर एंड मिनरल्स के लिए. तो जो दूसरा जॉब है प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो क्या है कि जो फूड प्रिपेयर किया गया है लीव्स में उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना, लाइक स्टेम, रूट, इस तरह से. तो प्लांट्स के पास दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, एक है आपका जाइलम और एक है फ्लोएम. तो जाइलम का फंक्शन क्या है कि ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है रूट से लीव्स तक. लीव्स से क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है. अब फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है कि वो जो मैन्युफैक्चर्ड फूड है, यानी जो फूड प्लांट से बनाया है, उसको कैरी करना इन अ सॉल्युबल फॉर्म लीव्स से प्लांट्स के वेरियस पार्ट तक इंक्लूडिंग द रूट्स. एक्टिविटी 1, upward conduction of water in plants through the xylem. Materials required: medium sized flask half filled with water with vegetable dye. Number 2, split cork. अच्छा, आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. ओके. 3, freshly cut twig of a plant. 4, knife. 5, microscope. और इन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है. Now procedure. Immerse the cut twig in the red colored water in the flask with the help of split cork. Number 2, leave the twig and flask undisturbed for around an hour.
Number 3, take out the twig from the flask and with the knife cut off the portion of the twig that was underwater. Number 4, observe the cross section of the twig under a microscope. Observations. Certain parts of the section are stained red. आपने क्या करना है, जो ट्विग कट किया है उसको अपने रेड कलर वाटर में इमर्स करना है फ्लास्क में स्प्लिट कॉक की हेल्प से. फिर आपने ट्विग को छोड़ देना है और फ्लास्क को अनडिस्टर्ब 1 घंटे तक. फिर आपने ट्विग को निकालना है फ्लास्क से नाइफ से और जो ट्विग का पोर्शन है उसे कट ऑफ करना है जो अंडर वाटर था. फिर आप ट्विग के जो क्रॉस सेक्शन है उसे ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प से. तो आप देखेंगे कि जो कुछ सर्टेन पार्ट्स होंगे ना सेक्शन के वो स्टेन्ड हो जाएंगे रेड. 8.2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. Water and mineral salts are the major components of photosynthesis. Both are absorbed from the soil by the roots of the plant and transported to various parts of the plant like stem, leaves and flowers through the xylem vessels and tracheates. Constant diffusion of water along with the minerals from the root cells produces a pushing force upwards. At the same time, constant evaporation of water from the leaves produces a pulling force which causes the water to move upwards in xylem vessels. अच्छा, वाटर एंड जो मिनरल सॉल्ट्स हैं ये मेजर कंपोनेंट्स हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो दोनों को ही एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से बाय द रूट्स एंड देन ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के वेरियस पार्ट तक, जैसे कि स्टेम, लीव्स या फ्लावर्स. ये किसके थ्रू होता है? xylem वेसल्स और ट्रैकिएट्स के थ्रू. जो कांस्टेंट डिफ्यूजन होता है वाटर का जिसमें अलॉन्ग विद मिनरल्स के रूट सेल से एक पुशिंग फोर्स प्रोड्यूस करते हैं अपवर्ड और सेम टाइम पे कांस्टेंट इवेपोरेशन जो होता है ना वाटर का लीव से वो भी एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे कि वाटर जो है वो अपवर्ड जाता है xylem वेसल्स में. 8.3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन. Once all the raw materials are available, food is manufactured by plants in its green leaves. This food is in the form of simple sugar or glucose which has to be transported to all parts of the plant like branches, stem, roots, etc. The process of transporting food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. The food manufactured by the leaves is transported to its all other parts through a kind of tube called phloem which are present in all its parts. It transports food in both upward and downward direction. अच्छा, अब सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो गए तो फूड आपका बनेगा ग्रीन लीव्स में, है ना, और ये आपका बनता है सिंपल शुगर या ग्लूकोज की फॉर्म में. उसके बाद इसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है. तो जो प्रोसेस है ना जिसमें फूड ट्रांसपोर्ट होता है लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट तक, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. तो जो फूड लीव्स में आपके मैन्युफैक्चर हुआ है बॉडी आपकी प्लांट की हर पार्ट तक जाएगी एक ट्यूब के थ्रू जिसे कहते हैं फ्लोएम जो उसके हर पार्ट्स में होती हैं. ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों. 8.4 आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स ट्रांसपिरेशन. Plants absorb much more water through their roots than what is required by them for various activities, including photosynthesis. The excess water is given off by the plants in vapor form through their leaves. The stomata in the leaves regulate this water loss known as transpiration. Thus, transpiration is the process by which a plant gives off water vapor through its leaves. The rate of water loss varies with the weather and rises steeply on a sunny or windy day. देखिए प्लांट जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू, देन इज रिक्वायर्ड बाय देम फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस. तो जो एक्सेस वाटर मतलब जितना उनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो जो एक्सेस वाटर है फिर प्लांट इसे गिव ऑफ करते हैं वेपर की फॉर्म में अपने लीव्स के थ्रू. तो जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में वो इस वाटर लॉस को रेगुलेट करते हैं जिसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन. तो ये प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट वाटर वेपर को गिव ऑफ करते हैं इसके लीव्स के थ्रू. तो जो रेट है वाटर लॉस का वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है आपके वेदर्स क्या है, ठीक है, या सनी डे या विंडी डे कैसा है आपका. Activity 2. To observe transpiration in plants. Take a small potted plant with healthy green leaves and cover it with a polythene bag. Leave the setup in sunlight for a few hours. What do you observe? You will see small droplets of water appearing on the inner surface of the bag. This is because the water vapor lost from the leaves during transpiration condenses on the inner surface of the polythene bag.
आपने एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है और उसको इस तरह से कवर कर देना पॉलीथीन से, ओके, और सनलाइट पे रख देंगे कुछ घंटों के लिए। तो आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि उसके इनर सरफेस जो पॉलीथीन बैग है ना, उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के। तो ये वाटर आया कहाँ से? वाटर वेपर, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, वाटर लॉस होता है ना, तो पॉलीथीन बैग के इनर सरफेस पे ही वो कंडेंस हो गए। 8.5 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। In multicellular animals, mostly vertebrates do not have most of their cells in contact with the external environment. Hence, they developed a closed circulatory system to transport nutrients, oxygen, carbon dioxide, etc. Arthropods and some molluscs have an open circulatory system. Some molluscs, worms, and all vertebrates have a closed circulatory system. In unicellular organisms like amoeba, transport of substance takes place by simple diffusion. Diffusion is the movement of particles from place where they are high in concentration to a place where they are low in concentration. Transportation in some other lower animals like sponges and hydra takes place by water in which they live. They have an open circulatory system. Water entering their bodies brings in food and oxygen, and as it moves out of their bodies, it gets rid of the wastage and carbon dioxide. देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं तो इनमें क्या होता है कि दे डू नॉट हैव मोस्ट ऑफ देयर सेल्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब इनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होते, तो इनका एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। आर्थ्रोपोड्स और कुछ मोलासेस का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और जबकि कुछ मोलासेस, वर्म्स एंड वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनका, और मतलब ऑल वर्टिब्रेट्स, इनका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है। इसमें पार्टिकल्स जो है डिफ्यूजन में क्या होता है, प्लेस करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, ओके। तो कुछ लोअर एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन आपके स्पॉन्जेस या हाइड्रा में वो आपका होता है वाटर से, जहाँ पे वो रहते हैं, तो इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में, फूड लेके आता है, फिर ऑक्सीजन लेकर आता है एंड मूव आउट हो जाता है इनकी बॉडी से। तो जैसे ही मूव आउट होता है तो फिर इट गेट्स rid of wastage and carbon dioxide. In open circulatory system, nutrients and waste are removed through the body with the assistance of a fluid which flows freely through the body cavity. Blood is not contained in the vessels. In closed circulatory system, blood flows at all times within vessels of different size and wall thickness. In this type of system, blood is pumped by the heart through vessels and does not normally fill body cavities. अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट होते हैं मूव करते हैं थ्रू द बॉडी एक फ्लूइड की असिस्टेंस से, जो कि फ्रीली आपका फ्लो करता है थ्रू द बॉडी कैविटी। तो ब्लड आपका वेसल में नहीं होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो करता है हर टाइम वेसल्स में, डिफरेंट साइज में और वॉल थिकनेस में। तो इस तरह के सिस्टम में ब्लड जो होता है, हार्ट उसको पंप करता है वेसल्स के थ्रू, एंड नॉर्मली वो क्या करते हैं, बॉडी कैविटी को फिल नहीं करता है। 8.6 Transportation in humans. In humans, transport of material takes place through a well-developed circulatory system. The circulatory system mainly consists of the blood vessels, heart, and blood. The function of these constituents are as follows. Blood vessels. Blood vessels are of three types: arteries, capillaries, and veins. अब आपके देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स आपके थ्री टाइप्स के। तो नंबर 1, आर्टरीज। As the left ventricle pumps the blood, it passes through the largest blood vessel in the body, the aorta. The aorta is an artery that carries blood away from the heart. It soon branches into smaller arteries which form a network leading to all parts of the body. अब देखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप करता है, फिर ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल में जाते हैं विच इज़ द ऑर्टा, ओके। ऑर्टा एक्चुअल में आपका एक आर्टरी है जो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट। फिर ये छोटी छोटी आर्टरीज में ब्रांच आउट हो जाती है जो एक नेटवर्क बनाते हैं लीडिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नंबर 2, कैपिलरीज। द आर्टरी नेटवर्क कैरीज ब्लड ऑल ओवर द बॉडी बट देयर वॉल्स आर टू थिक फॉर ऑक्सीजन एंड फूड टू पास थ्रू। अच्छा, अब आर्टरी जो है
आर्टरी नेटवर्क जो है ब्लड को तो कैरी करते हैं बॉडी में, पर इनकी वॉल्स ना बहुत थिक होती हैं ऑक्सीजन और फूड को पास होने के लिए, राइट. इन ऑर्डर टू डू its main job of transporting materials, the blood has to pass from the thick arteries into very thin walled blood vessels called capillaries. और इसमें क्या होता है कि फिर ब्लड को पास होना होता है थिक आर्टरीज से वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स में, जिन्हें कहा जाता है कैपिलरीज. फूड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द आर्टरीज एंड एंटर द सेल्स. जो फूड है या ऑक्सीजन है वो आर्टरीज की थिन वॉल से पास होकर सेल में एंटर करती है. नंबर 3, वेन्स. After the blood has given up its oxygen and is dark red again, it leaves the capillaries and enters blood vessels called veins. These carry blood back from the body to the heart. They have tiny one-way walls which prevent the blood from flowing backward. So blood always flows back to the heart. अच्छा, अब जो आपका ब्लड है उसने ऑक्सीजन को गिव अप कर दिया तो ये डार्क रेड में हो जाएगा फिर ये कैपिलरीज को छोड़ेगा और ब्लड वेसल में एंटर करेगा, जिसे कहते हैं वेन्स. फिर ये ब्लड को वापस कैरी करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट. तो इनका एक वन वे वॉल्व होता है जो ब्लड को बैकवर्ड फ्लो होने से प्रिवेंट करता है. तो इस ब्लड जो है हमेशा वो फ्लो बैक करेगा आपके हार्ट में. हार्ट स्ट्रक्चर. The human heart is made up of 4 hollow chambers. A thick wall of tissues called the septum separates the heart into right and left side with 2 chambers on each side. The upper chambers on both sides are called atria or auricles, while the lower chambers are called ventricles. Human heart में आपके 4 chambers होते हैं, hollow chambers. एक thick wall of tissue होता है जिसे कहते हैं septum, जो separate करता है हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में. ओके तो जो अपर चेम्बर होते हैं दोनों साइड्स में उसे कहा जाता है आर्ट्रिया या फिर ऑरिकल्स, एंड जो लोअर चेम्बर्स होते हैं उसे कहते हैं वेंट्रिकल. ओके जैसे कि आपको देखिए ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसमें आपको नजर आएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम. The right auricle or atrium receives the 2 largest veins, the superior and the posterior vena cava, which bring deoxygenated blood into this chamber. The left auricle receives 4 pulmonary veins which carry oxygenated blood from the lungs. From the right ventricle arises the pulmonary artery which carries the deoxygenated blood to the lungs. From the left ventricle arises the dorsal aorta which carries oxygenated blood to all parts of the blood including the heart. अच्छा देखिए, जो राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम है वो 2 लार्जेस्ट वेन को रिसीव करता है, सुपीरियर और जो पोस्टीरियर वेना कावा है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते इस चैम्बर में. ओके तो जो लेफ्ट ऑरिकल है वो रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेन्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम द ब्लड. ओके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ओके एंड ऑक्सीजनेटेड जिसमें आपका ऑक्सीजन होता है. फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल अब क्या होता है कि यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी अराइज करती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती है. फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में से आपका जो डॉर्सल ऑर्टा है वो अराइज होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स तक लेके जाता है इंक्लूडिंग हार्ट. फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. The heart receives deoxygenated blood in the right auricle and then pumps it through the right ventricle to the lungs for oxygenation through the pulmonary artery. The oxygenated blood is brought back into the left auricle through the pulmonary veins, and from there it is pumped into the left ventricle, from where it is pumped to all parts of the body by the dorsal aorta and its branches. The pulmonary artery is the entry artery which transports deoxygenated blood, and the pulmonary vein is the only vein which transports oxygenated blood. अब देखिए हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट ऑरिकल में एंड देन पंप करता है राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग्स तक फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी. अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ब्रॉड बैक करता है लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और फिर वहाँ से वापस आपका पंप हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहाँ पे ये हर बॉडी के हर पार्ट तक पंप होता है बाय द डॉर्सल ऑर्टा और इसकी ब्रांचेस ये काम करती हैं. फिर जो पल्मोनरी आर्टरी है आपकी एंट्री आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, और पल्मोनरी वेन जो है आपकी ओनली वेन है, इकलौती ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. ब्लड. Blood is a type of connective tissue.
It being a fluid tissue does not stay in one place and hence connects different parts of the body. The circulatory system transports many different substances through the blood. Blood consists of the following components. ब्लड एक्चुअल में आपका क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब ये फ्लूइड टिश्यू है तो ये एक जगह पे तो रहता नहीं है ना, तो इसीलिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करता है. अब ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 इज प्लाज्मा. It is a fluid part of the blood, 90% of which is water. It is pale yellow in color. Rest of it consists of simple food molecules, enzymes, minerals, wastes and some proteins. These proteins enable the blood to clot and fight infections. Blood का जो fluid part है ना, that is plasma. 90% इसमें water होता है. ये pale yellow होता है कलर में. बाकी जो इसमें है water के अलावा आपका food molecules, enzymes, minerals, waste product ये सब है. और प्रोटीन्स है. तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये ब्लड को हेल्प करते हैं क्लॉट होने में और इन्फेक्शन से फाइट करने में. रेड ब्लड सेल्स और RBCs. The numerous cells found in the whole blood are red blood cells. The ratio to white blood cell is 700:1. An iron-containing protein called hemoglobin is found in red blood cells that gives blood its red color. It binds oxygen in the lungs and carries it to all parts of the body. White blood cells or WBCs. White blood cells are called leukocytes and they are somewhat larger than red blood cells. They prevent infection and fight disease by surrounding and destroying any germs that enter the body. Red blood cells ये आपके होल ब्लड में पाए जाते हैं. ओके और इनका रेशियो है, अगर हम कंपेयर करें वाइट ब्लड के सेल के साथ, वह है 700:1. एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन. ये आपके रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है. ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है लंग्स में और फिर इसको कैरी करता है बॉडी के हर पार्ट तक. वाइट ब्लड सेल जो आपके, इनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, रिमेंबर दैट. और ये थोड़े से आपके रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं. ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं और फाइट करते हैं डिसीजेज से. ओके और मतलब और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं, उसे फाइट करने में हेल्प करते हैं जो बॉडी में एंटर करना चाहते हैं. Platelets. Platelets are tiny blood cells that help the body to form clots so as to stop bleeding. As soon as a blood vessel has been nicked, platelets begin to collect around the wound. They then release an enzyme that acts on other substances in the blood to create a clot. The other name of platelet is thrombocytes. Platelets जिनको thrombocytes भी कहा जाता है, ये आपकी छोटे ब्लड सेल्स होते हैं जो बॉडी को हेल्प करते हैं क्लॉट बनाने में. जिससे कि आपने देखा होगा ब्लीडिंग होती है, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि क्लॉट हो जाते हैं, तो उसमें प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. तो जैसे ही आपके जो ब्लड वेसल्स आपके जैसे ब्लड ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, प्लेटलेट्स जो हैं उस घाव के अराउंड, वुंड के अराउंड कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. फिर एक एंजाइम को वो रिलीज़ करते हैं जो दूसरे सब्सटेंस पे एक्ट करता है जो ब्लड में होता है, फिर क्रिएट करता है एक क्लॉट. 3 kinds of blood cells, their shapes and functions. देखिए इस टेबल में आपको क्या दिया गया है, ये ब्लड सेल और उनके फंक्शन. जैसे रेड ब्लड सेल RBC, एराइथ्रोसाइट्स भी नहीं कहा जाता है, राउंड शेप में होते हैं विदाउट अ न्यूक्लियस. इनका फंक्शन क्या है, कंटेन हीमोग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर. इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे अभी आपने हीमोग्लोबिन का फंक्शन पढ़ा कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो ब्लड को ये रेड कलर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है. वाइट ब्लड सेल्स WBC और ल्यूकोसाइट्स, इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और इनका फंक्शन क्या है कि ये डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. इनका शेप इरेगुलर होता है विदाउट अ न्यूक्लियस और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. ब्लड ग्रुप्स. A blood group or blood type is based on the presence or absence of 2 proteins, A, B, on the surface of red blood cells. As 2 proteins are involved, there are 4 possible combinations of blood types A, B, AB, and O. Everyone is born with a certain blood group which stays with him for a lifetime. People with group A blood have an A protein attached to the outer surface of every red blood cell, and people with group B blood have a B protein. Group AB people have both proteins while group O people have neither. अच्छा
जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ये ब्लड टाइप होता है, वो बेस्ड होता है, इस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन्स है, दो प्रोटीन्स ए और बी, वो एब्सेंस है या वो प्रेजेंट है रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे। तो दो प्रोटीन्स इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो है आपका ए बी एंड ओ। जो कोई भी जन्म लेते हैं, हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप होता है जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहता है। अच्छा, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनमें ए प्रोटीन होता है जो हर रेड ब्लड सेल के आउटर सरफेस से अटैच होता है। एंड जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें बी प्रोटीन होता है, ओके। और जो ए बी पीपल है इनमें दोनों प्रोटीन्स होते हैं, जबकि ओ पीपल में दोनों ही नहीं होते, जिनका ग्रुप ओ होता है। प्रिकॉशंस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Blood types are important for giving blood from one person to another. The blood types must be matched. If not matched properly, the recipient will form clumps in response to the donor's blood. These clumps will lead to heart attacks, strokes, etc. Two special blood types are type O. Type O is called universal donor as it can be given to anybody. It has no protein to cause clumps. 2. Type AB. Type AB is called universal acceptor as the recipient has all the proteins and so will not form clumps. देखिए, जब किसी पर्सन को ब्लड चढ़ाया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, तो हमेशा उसका ब्लड टाइप मैच करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपरली मैच नहीं किया गया तो जो रिसिपेंट है यानी जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, क्लम्प्स फॉर्म हो जाएंगे उसमें, ओके। और ये जो क्लम्प्स हैं इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक आ जाते हैं। तो दो स्पेशल तरह के ब्लड टाइप्स होते हैं, जैसे कि टाइप ओ ये यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों? क्योंकि ये डोनर मतलब ये हर किसी को दे सकता है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता जिससे कि क्लम्प्स हो। नंबर 2 है आपका टाइप्स ए बी। अब ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास सारे प्रोटीन्स हैं, मतलब ए एंड बी, और इसीलिए कोई भी क्लम्प्स नहीं बनेंगे। देखिए, आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स दिए गए हैं, तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। जैसे देखिए, ब्लड ग्रुप ए और इसमें प्रोटीन जो आपके रेड ब्लड सेल्स में है, एंड क्लम्पिंग केमिकल्स इसके प्लाज्मा में पाया जाता है एनटीबी, एंड एक्सेप्ट कौन कर सकता है ए को? ए ग्रुप वाले और ओ ग्रुप वाले। नेक्स्ट इज बी। इसमें आपका क्लम्पिंग केमिकल जो है जो प्लाज्मा में होता है एंटी ए, और बी को एक्सेप्ट कौन कर सकता है? बी ग्रुप वाले और ओ ग्रुप वाले। नेक्स्ट इज ए बी। ए बी ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किस से एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, A group, B group, AB and O से। And next one is O. O is universal donor, right? And ये accept करता है किससे? खाली O group वालों से। Blood pressure. Blood is carried around the body in very thin tubes called blood vessels. Generally, blood pressure is the measurement of the pressure in the walls of bigger blood vessels called arteries. Each time the heart contracts to pump blood through blood vessels, blood pressure rises. This phase is called systole. Blood pressure falls each time the heart relaxes between beats. This phase is called diastole. अच्छा देखिए, ब्लड को बॉडी में लेके जाते हैं, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल्स। तो जो ब्लड प्रेशर है ना, उसको वो आपका क्या है? वो मेजरमेंट है आपका प्रेशर जो बिगर ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे होता है, जिन्हें कहा जाता है आर्टरीज। तो हर टाइम जो है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? राइज हो जाता है। तो ये फेज होता है सिस्टोल, ओके। एंड जब ब्लड प्रेशर फॉल होता है हर टाइम जब हार्ट जो है रिलैक्स करता है बीट्स के बीच, तो ये फेज होता है आपका डायस्टोल। Blood pressure is measured by an instrument called a sphygmomanometer, where the measurement is indicated by two numbers representing systole and diastole phases respectively. Blood pressure varies from moment to moment as it is affected by many factors including breathing, body position, emotional state, exercise, sleep, etc. तो देखिए, ब्लड प्रेशर को जिससे मेजर किया जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे कहा जाता है स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये आपने देखा भी होगा, डॉक्टर्स जब भी ब्लड प्रेशर्स जो चेक करते हैं वो यही इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिस्टोल को और एक डायस्टोल को। आपने देखा होगा उसमें एक आपका होता है हाई प्रेशर और आपका एक लो होता है, राइट, जो उसमें आपकी रेंज दी होती है। तो जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है मोमेंट टू मोमेंट, ओके। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसे अफेक्ट करता है, लाइक ब्रीदिंग है या बॉडी पोजीशन क्या है, एक्सरसाइज या इमोशनल स्टेट। हार्ट बीट्स,
The rhythmic contraction and relaxation of auricles and ventricles is called heartbeat. The rate of normal heartbeat is 72 times per minute in a normal adult. Physicians count the heartbeats with an instrument called stethoscope. You too can feel heartbeats by placing the middle and index fingers of your right hand on the inner side of your left wrist where the blood runs through an artery. During physical exercise or running, the heartbeats generally increase because the heart has to speed up its pumping to meet the body's need. अब देखिए हार्ट बीट आपकी क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड जो रिलैक्सेशन होता है ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का, उसे कहते हैं हार्ट बीट. तो जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट. ओके, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होना चाहिए. ओके, तो जो फिजिशियन हार्ट बीट्स को काउंट करते हैं, किससे करते हैं? स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास होता है ना, दिस इज द स्टेथोस्कोप, राइट. आप भी हार्ट बीट को अपनी फील कर सकते हैं. कैसे? आपकी जो मिडिल फिंगर एंड जो इंडेक्स फिंगर, ये दोनों जो फिंगर्स होती हैं आप अपने रिस्ट पे यहाँ पे रख सकते हैं, राइट, एंड आपको फील होगा. जब भी कभी फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हैं, रनिंग करते हैं, राइट, या आप ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तो जो हार्ट बीट है वो जनरली बढ़ जाती है ना. क्यों? क्योंकि हार्ट को स्पीड अप करना पड़ता है उसकी पंपिंग को, जिससे कि बॉडी की जो डिमांड है उसी वो पूरी कर सके. एक्टिविटी 3. Hold your left wrist and place the index and middle fingers of your right hand above and thumb below it. Press gently. Do you feel any kind of thumping? Count the number of pulse beats in a minute and record. This is the rate of your heartbeats. जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने लेफ्ट रिस्ट में आप इन 2 फिंगर्स से इस तरह से रखेंगे, आप अपनी हार्ट बीट को फाइंड आउट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, राइट. और आपको जेंटली जो आपका थंब है उसको ऐसे प्रेस करना है. 8.7 excretion. It is necessary for the body to rid itself of waste products and regulate the volume and composition of body fluids. If waste products are not removed, they will eventually poison the organism. The process of getting rid of waste materials is called excretion. Excretion is also important in eliminating excess water and other unwanted chemicals that may be ingested and enter the body fluids such as plant poisons and excess salts. In simple animals like amoeba, paramecium, sponge and hydra, wastes are removed through the body surface by the process of diffusion. They do not have any special organs of excretion. देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको रिमूव नहीं किया गया तो क्या करेंगे, वो अंदर टॉक्सिक क्रिएट करेंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर. सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल से को निकाला जाता है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. अच्छा, तो एक्सक्रीशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो एक्सेस वाटर है या कोई अनवांटेड केमिकल्स हैं जो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, हमारी बॉडी फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं, तो उनको निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर हम अमीबा, पैरामीशियम, स्पॉन्ज या हाइड्रा की बात करें, ये सिंपल एनिमल्स हैं, तो उनमें वेस्ट का रिमूवल होता है बॉडी सर्फेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि इनके स्पेशल ऑर्गन्स होते ही नहीं एक्सक्रीशन के लिए, राइट. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एन इंसेक्ट इज द Mallefian tubules that are attached to the digestive tract at the extreme interior end of the hindgut. The waste materials are transported along the tubule to gut for removal from the body along with feces. अब जो इंसेक्ट का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका दिस वन, Mallefian tubules, जो कि आपके अटैच होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ. इसमें आपके जो एक्सट्रीम इंटीरियर एंड जो होता है उनके हिंडगट का, तो वेस्ट मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है अलॉन्ग द ट्यूबुल और फिर वो रिमूव हो जाता है बॉडी से विथ फेकस. 8.8 excretion in plants. Plants have no well-developed excretory system for removal of toxic and waste products. They excrete toxic and waste products in the following ways. Number 1, excretion of gaseous waste in plants takes place through the stomata in leaves and lenticels and stems. Number 2, some waste products of photosynthesis collect in the leaves and bark of the tree. The plant gets rid of them by shedding leaves and peeling of bark. Number 3, some wastes are stored as solid bodies. Rubber and raphides are examples of some such bodies. Number 4, some plants excrete waste as secretions such as gum, resin, sandalwood oil, eucalyptus oil, etc. Number 5, aquatic plants excrete metabolic wastes through diffusion, whereas terrestrial plants excrete into the soil. अच्छा देखिए, प्लांट्स भी
एक्सक्रीट करते हैं, बट उनके वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही नहीं है, तो फिर वो उनके बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू वो अपनी बॉडी से टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं। जैसे कि गैसियस वेस्ट का एक्सक्रीशन वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं जो आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है, या फिर आपके लेंटिकल जो आपके स्टेम्स में होते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस का वो कलेक्ट हो जाता है लीव्स में या ट्री की बात में, तो फिर प्लांट क्या करते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, वो उस लीफ में जिसमें कलेक्ट हुआ है उसको वो शेड कर देते हैं या बाकी पीलिंग हो जाती है। एंड कुछ वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है एज सॉलिड बॉडीज़, जैसे कि रबर और ग्रेफाइट्स, ये एग्जाम्पल है ऐसे बॉडीज़ के, राइट। एंड आपका कुछ प्लांट जो है वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब सिक्रीशन की फॉर्म में, जैसे गम या रेजिन होता है, जैसे सैंडलवुड ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ये सारा ही प्लांट का वेस्ट है। एंड जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, जबकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सॉइल में एक्सक्रीट करते हैं। 8.9 excretion in humans. A major function of the blood in human body is the elimination of generated wastes. The major wastes produced in the human body are carbon dioxide, sweat, and urine. The respiratory waste product and water are removed by blood and eliminated through lungs and the nose. The sweat glands in the skin eliminate urea, salt, and excess water. These materials form a liquid called perspiration or sweat. When the body perspires, it helps to not only get rid of wastage but also regulates the body temperature. Large intestine and its extensions eliminate some wasted at fecus. The liver removes unwanted red blood cells and excess amino acids. This waste is mixed with bile juice, carried to the duodenum and eliminated with the fecus. The kidneys excrete liquid waste, mainly urea, in the form of urine. Besides urea, urine also contains other waste salts and excess water from the blood. देखिए, आपका जो ब्लड का फंक्शन है, मेजर जो फंक्शन है ब्लड का ह्यूमन बॉडी का, वो ये है कि जितना भी जो जेनरेटेड वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना। तो मेजर जो वेस्ट आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन। तो जो रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका कैसे एलिमिनेट होता है, लंग्स एंड नोज के थ्रू वाइल रेस्पायरिंग, राइट। आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती है स्किन में, वो क्या करती है, वो यूरिया, सॉल्ट और एक्सेस वाटर को निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, स्वेट होता है, जिसे कहते हैं पर्सपिरेशन या स्वेट, स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग के थ्रू क्या निकल जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है। अच्छा, इसके बाद आपका ना जब से स्वेटिंग हमें होती है, आपका जो वेस्ट है वो तो रिमूव हुआ, लेकिन साथ ही साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो भी रेगुलेट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन और उसके जो एक्सटेंशन है वो कुछ वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, फेकस। लिवर जो है अनवांटेड रेड ब्लड सेल्स को और एक्सेस अमीनो एसिड को रिमूव करता है, फिर ये बाइल जूस के साथ मिक्स हो जाता है, ड्यूटेरियम तक जाता है और फिर फेकस के साथ ये एलिमिनेट हो जाता है। किडनीज का काम है कि क्या करते हैं, लिक्विड वेस्ट को एक्सक्रीट करना, जो आपकी यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है, राइट। यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस। The main excretory organ in humans is the urinary system. Remember that, okay? The system consists of 2 kidneys, 2 ureters, a urinary bladder and a urethra. Okay? ये आपके excretory system के आपके parts हैं. The kidneys, about 60% of a human body weight is water, over half of which is found inside body cells and tissues. The rest of the water bathes all the body cells. This water is mixed with salts. The amount of various salts in the body's water, particularly in the watery blood tissue, is very important. Too much or too little salt may lead to problems. So it is necessary that the salts in the body's water be kept at exactly the right concentrations. It is the work of the 2 kidneys, the most important excretory organs. The kidneys are located under the lowest ribs near the spine. Each bean-shaped kidney is divided into an inner section and an outer section. The outer section contains millions of microscopic chemical filtering tubes called nephrons. अच्छा देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो वेट है ना उसका 60% क्या है, वाटर, और इसका हाफ जो है वो बॉडी के इनसाइड पाया जाता है, बॉडी सेल्स और टिश्यूज में। तो जो आपके जो होते हैं वेरियस सॉल्ट्स आपके बॉडी वाटर में होते हैं, स्पेशली आपके वाटरी ब्लड टिश्यू में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट बहुत ज़्यादा सॉल्ट और बहुत कम सॉल्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो इसीलिए इनका राइट कॉन्सेंट्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये हमारी जो 2 किडनीज है ना, इनका काम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है आपके। तो किडनीज आपके रिब्स की
आपके लोएस्ट रिब्स के नीचे होते हैं, स्पाइन के पास. ओके, तो ये जो बीन शेप, कैन यू सी दिस बीन शेप, है ना, बीन के जैसे इनकी शेप है किडनीज की. तो जब हर बीन शेप किडनी होती है ना, ये डिवाइडेड है इनर सेक्शन और आउटर सेक्शन. तो जो आउटर सेक्शन है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक केमिकल फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट्स. Out of the filtered material, much of the water and digested food are reabsorbed into the bloodstream. The liquid that is left over the reabsorption is called urine. Okay, अब आपका ये जो filtered material है उसमें से ज़्यादा आपका water और जो digested food है वो blood stream में reabsorb हो जाता है, right? अब इसके बाद जो liquid बच गया है reabsorption के पास, that is urine. Okay. Next, ureter. Ureter is one of the two tubes that drain urine from the kidneys into the bladder. Each ureter is a muscular tube about 10 inches long. Muscles in the walls of ureter send the urine in small spurts into the bladder. Urinary bladder. The urinary bladder is a hollow, muscular and distensible organ. It has the ability to expand as it fills with urine. Urethra. The urethra is a muscular tube that connects the bladder with the outside of the body. Its function is to remove urine from the body. अच्छा देखिए, अब क्या है कि आपका यूरिन आपका क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया है लिक्विड वेस्ट का उसमें से जो बच गया वो आपका यूरिन. अब यूरेटर आपकी दो ट्यूब्स में से है, वो क्या करती है कि वो यूरिन को ड्रेन करती है किडनी से ब्लैडर में. ओके, और हर यूरेटर जो है आपके क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है 10 इंचेस लॉन्ग. इसके बाद आपका यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर आपका हॉलो, मस्कुलर और एक डिस्टेंसिबल ऑर्गन है. ये क्या करता है कि ये इसकी एबिलिटी होती है कि एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूरिन फिल होता है. फिर यूरेथ्रा से आपका देखिए, यूरेथ्रा आपका एक मस्कुलर ट्यूब है जो ब्लैडर के साथ कनेक्ट होता है, जो ब्लैडर को कनेक्ट करता है बॉडी के आउटसाइड से. ओके, और इसका फंक्शन क्या होता है कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना. 8.10 किडनी फेलियर एंड डायलिसिस. Kidney failure is also called a renal failure. With kidney failure, the kidneys cannot get rid of the body's extra fluid and waste. This may happen because of infection or damage from an injury. Complete failure of kidneys causes urea and other waste products to build up in the blood. Even the amount of water in the body is not regulated. Such a situation may cause death of a person if immediate treatment is not given. Treatment. The best and long-term solution for kidney failure is kidney transplantation. The failed kidney is removed and a matching kidney donated by a healthy person is transplanted in its place by a surgical operation. Usually, a kidney is not available for transplantation due to a number of reasons. Alternatively, the person with kidney failure is treated periodically on a kidney machine by a procedure called dialysis. The kidney machine, also called artificial kidney, works in place of the damaged kidney. अच्छा देखिए, कई बार ना किडनी फेलियर हो जाती है, उसको रेनल फेलियर भी कहा जाता है. तो अब किडनी फेल्स हो जाती है, मतलब किडनी अपना फंक्शन कैसे करेंगी, तो किडनी जो है, जो बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वेस्ट है, उससे वो रिमूव नहीं कर पाती. तो कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से होता है. तो कंप्लीट फेलियर जो होता है, अगर किडनी का कंप्लीटली वो फेल हो चुकी है, तो उससे यूरिया, ये जो अदर वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बॉडी ब्लड में आपके बिल्डअप हो जाते हैं, और जो अमाउंट ऑफ वाटर है बॉडी में वो भी रेगुलेट नहीं हो पाता. तो ऐसे केस में पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिले. तो इसका ट्रीटमेंट देखिए होता है, अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए है किडनी ट्रांसप्लांटेशन. यानी कि जो फेल्ड किडनी है किसी पेशेंट की, उसे निकाल के एक मैचिंग किडनी लगाई जाती है जो कोई हेल्दी पर्सन डोनेट करता है, राइट. तो यूजुअली आपकी जो किडनी होती है वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, राइट. तो अल्टरनेटिवली एक मेथड होता है, जैसे कहता है डायलिसिस. तो ये आपकी किडनी मशीन होती है, एक आर्टिफिशियल किडनी समझ लीजिए, जो कि डैमेज किडनी की जगह काम करती है. द ब्लड ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली बाय यूजिंग अ किडनी मशीन. The procedure used for cleaning the blood of a person by separating the waste substances like urea from it is called dialysis. Basically, it is a life support treatment. The three main types of dialysis are hemodialysis, peritoneal dialysis and hemofiltration. तो देखिए इसमें क्या, डायलिसिस में क्या किया जाता है, जो ब्लड होता है पर्सन का
जिनकी किडनी फेल हो चुकी है उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है किडनी मशीन्स के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रोसीजर में क्या होता है कि ब्लड को क्लीन किया जाता है ना, तो वेस्ट सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, यानी कि जो यूरिया है, राइट। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये सारा किया जाता है। तो बेसिकली लाइफ सपोर्ट सिस्टम में 3 तरह के आपके डायलिसिस होते हैं, जो कि हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोफिल्ट्रेशन। Key points. Plants have 2 types of conducting tissues called the xylem and phloem. The process of transporting food from the leaves of plant to its other parts is called translocation. Transpiration is a process by which a plant gives off vapor from its leaves. Transportation system delivers oxygen to body cells and also carries food to all body parts. The transport system in human consists mainly of blood vessels, heart and blood. Arteries carry blood away from the heart while veins carry blood from the body back to the heart. Blood is a type of tissue made up of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. The process of getting rid of waste materials is called excretion. The procedure used for cleaning the blood of a person by separating waste substances like urea from it is called dialysis. The 3 main types of dialysis are hemodialysis, peritoneal dialysis and hemofiltration. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।